شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، جو ہماری بات چل رہی ہے منگل کے دن کے لیے، اور یہ مسیح کے زمینی دنوں میں یہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا، جس دن انہوں نے فسح کھائی اور جس دن انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جس دن انہوں نے گیت گاتے ہوئے باغ گتسمنی میں دعا کی اور اپنے شاگردوں کو ابھارا کہ وہ دعا کیا کریں، کیونکہ یہ سارے بیان آپ مرکز 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے 26ویں آیت، اور لوکا 22واں باب 7ویں آیت سے 34ویں آیت، اور متی 26واں باب 17ویں آیت سے 30ویں آیت تک، اور آج کا دن چاند کی 13، نسان کی 13 اور انگریزی مہینے میں اپریل کی 11 ہے۔ آج کے دن بہت سارے واقعات ہیں جو لنک ہوتے جا رہے ہیں، جڑتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ استثنا کی کتاب پڑھیں تو ایک دکھوں کا سبت قریب آ رہا ہے۔ احبار کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ خدا کہتا ہے اسے لازمی منانا۔ آپ پھر دکھوں کی بات اگر اس کو دیکھتے جائیں تو متی 27واں باب اس کی 62ویں آیت، مرکز کی انجیل 15واں باب 42ویں آیت، لوکا 23واں باب 54 آیت، یوحنا 19واں باب 42ویں آیت، یہ سارے کے سارے آج ہی کے دن واقعہ رونما ہوئے ہیں۔ یہودا کمیٹڈ ہے اپنی مگیتر کے ساتھ کہ میرا بردر ان لا، میرا سالہ بچ جائے، کیونکہ رومیوں نے اسے پکڑا تھا غداری کے کیس میں کہ اسے مار دیا جائے۔ اب میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع پیدا ہونے کے دن سے آخری دن تک جگہ جگہ بچاؤ کر رہا ہے لوگوں کا، اپنے آپ کو دے دیتا ہے لیکن دوسروں کو بچا لیتا ہے۔ کبھی وہ کسی جگہ پر کسی کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے، کسی جگہ پہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، کسی جگہ پہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، کسی جگہ پہ کسی کو پانی سے مے بنا کے دے رہا ہے، کسی کے مردے زندہ کر رہا ہے، کسی کی آنکھیں کھول رہا ہے، کسی کا بخار اتر رہا ہے، کوئی بیمار شفا پا رہا ہے، کسی کا کوڑ دور ہو رہا ہے، کسی کی بیٹی زندہ ہو رہی ہے، کوئی ہے جو قبروں میں رہتا ہے اور اس کی بدروہیں نکال کے اسے پھر سے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، کوئی ہے جو ویلا ہے، آوارہ صرف پھرتا ہے یسوع کے پیچھے پیچھے روٹی کھائے، تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو اپنے گھر جا۔ یہ ساری باتیں جو معاشرتی عوامل ہیں، جو مذہبی ہیں، جو ہیومن رائٹس کے ہیں، جو بے یار و مددگار لوگ ہیں، جو جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس شیلٹر نہیں ہے کوئی، تو ان کو کسی کو کھانا دے رہا ہے، وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک رازق بھی ہے، کھانا دے رہا ہے، اور ایک ہیومن رائٹس کا لیڈر بھی ہے۔ کبھی وہ مریم مگدلینی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی وہ کسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اس کو دیکھو گے کہ 3.5 سال مسیح کی خدمت میں وہ 4 بار انہوں نے یروشلم میں عید منائی، چاروں بار لوگوں نے اسے جانا کہ یہ ایک فرق ہے، اور چاروں بار مسیح کی بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ کوئی ممسوح ہے، یہ خاص ہے، اور اس کی خاص و خاص طبیعت کے سبب سے رومی بھی پریشان تھے، کہن بھی پریشان تھے، فریسی، صدوقی،
सब परेशान थे। और अमीर लोग जो ढोंगची थे, जो ड्रामा करने वाले थे, जो पखंडी थे, वो भी परेशान थे कि हमारे पखंड कैसे चलेंगे। जो झूठी बातों में लोगों को कहते थे इसमें बदरूएं हैं, इसमें बदरू निकल गई, इसमें आ गई, इसमें ये हो गया, अब इसकी बीमार। जो हीलर थे वो भी परेशान थे कि ये तो जिधर से जाता है लोगों की शफा मिलती जाती है। और अब उसका टाइम आ रहा है कि वो अपने फाइनल राउंड में आए। वो यीशु सुपर हीरो है, उसकी तरह का कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि यीशु की जिंदगी एक मुकम्मल तौर पर पिक्चर है, मुकम्मल किताब है, मुकम्मल भेद है, जो आसमान की भी बारीकियां बताता है और जमीन पर रहने का भी ढंग सिखाता है। कई लोग हैं जो आज तक मूसा की चादर का एक कोना पकड़ के चल रहे हैं, कई हैं जो किसी तरह शरीयत की बातों को लेकर चल रहे हैं, कई हैं जो अमलो अमाल को लेकर चल रहे हैं, कई हैं जो सिर्फ ईमान को लेकर चल रहे हैं, कईयों का किसी तरफ फोकस है, कईयों का किसी तरफ। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में इत्मीनान पाना, स्ट्रेस से निकलना, तो इस मंगल के दिन को याद रखें। मंगल ये हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खुशी। तो ये खुशी का एक दिन है, बाद में बेशक ये गम में बदलने वाला है, लेकिन आज खुशी का दिन है, मंगल का दिन, जब यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को कह रहा है कि ज़ियाफत का इंतजाम किया जाए। एक दहलान, एक जगह, एक घर तैयार किया जाए, आरास्ता किया जाए कि आज मैंने खाना खाना है, खास फसा हो। मेरी बड़ी आरजू थी कि तुम्हारे साथ ये फसा खाऊं। इतना खुश है कि अब वो पांव धो रहा है अपने शिगिर्दों के, उनके साथ बातें कर रहा है, और यूहन्ना करीब आकर उसके सीने का सहारा लेकर उसको जफ्फी डाल रहा है। मोहब्बत भरी बातें हो रही हैं और वादे किए जा रहे हैं वफादारी के। जो पतरस है वो कहता है कि मैं तो तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं उस्ताद, मैं तो तेरा वफादार हूं। तो मसीह कहता है कि मुझे अकेले ने ही सब कुछ करना है। वो खुशी से अपने आप को तैयार कर रहा है। एक अलविदाई पार्टी है, एक दूसरे को वो देख रहे हैं कि हमारा उस्ताद कैसी बातें कर रहा है, और यीशु कह रहा है कि ऐ पतरस मैं तेरे लिए दुआ की है, तू भी छोड़ जाएगा, चला जाएगा, लेकिन जब पलट के आए तो भाइयों को, अपने साथियों को, ये पहली दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अपने भाइयों को तू मजबूत करना। रिश्ता दे दिया, वहां पर खिदमत करके दिखाई है। तो इसलिए आप बाइबल के बारे में आप जब स्टडी करते हैं तो मसीह के आखिरी दिनों को कोशिश करें कि समझें। बहुत सारे मैंने खादमों को देखा है, माजरत के साथ बात करता हूं, कि बोंगियां मारते हैं, पहले का अमल बाद में लगा देते हैं, बाद की बात पहले लगा देते हैं। कोई कहता है कि यीशु छुपा हुआ था, कोई कहता है यीशु घर से भाग गया था, कोई कहता है यीशु ने तो अपने आप को जाहिर ही नहीं किया। भाई मेरे दोस्तों, अगर समझ नहीं है तो फैसला क्यों करते हैं? अगर स्टडी नहीं है तो इतना चीखते क्यों हो? कचरा इकट्ठा कर लो जितना मर्जी। सोने की कीमत एक छोटी सी डली की बड़ी कीमत है, हीरे की एक कंकर की बड़ी वैल्यू है। यीशु जो है वो कीमती स्टोन है जिसको लोगों ने रद्द कर दिया। वो कोने के सिरे का पत्थर है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। पूरी दुनिया का निजाम यीशु पर चलता है। यीशु के जरिया से ही तारीख बदल गई। पहले निसान चलता था यहूदियों का महीना, ये उसकी पहली तारीख थी। अब देखिए कि वो तारीख बदलने आ गया। चांद से महीना चलता था, वो तारीख बदलने आ गया। हर बात में आप देखेंगे कि कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, मसीह से पहले, मसीह के बाद, सने ईसवी, यानी कि जो ईसा से चली गई है,
जो ईसा से समझ आती है कि यीशु से पहले क्या हुआ, यीशु के बाद क्या हुआ। इसलिए आप अपने दाएं बाएं अक़वाम को देखें, आप शिया हजरा जो जितने हजरात हैं उन पर देखें, ध्यान दें, तो जब वो मजलिस करते हैं तो हसन हुसैन के बारे में, हजरत अली के बारे में जब वो बात करते हैं तो वो रोते हैं, इतने गहरे में चले जाते हैं, फीलिंग लेते हैं उस दिन की, क्योंकि जो उनके टीचर हैं आगे, जो मजलिस करवाने वाले हैं, वो इस तरह का माहौल बनाते हैं, जो जाकिर हैं इस तरह से जिक्र करते हैं कि लोग पीटते हैं, रोते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक हमारे लोग हैं जो मसीह की बात को कोई कहता है नहीं, वो हालांकि वो घर में उस वक्त नहीं रहता था जब लोगों ने अपना मंसूबा बना लिया, लाजर जिंदा हो गया और लोग चाहते थे उसको मार दें। तो लाजर का जिंदा होना एक दिन की बात नहीं, ये 3 साल सलीब से पे चढ़ने से 3 साल पहले यीशु ने लाजर को जिंदा किया था। काना गलील का मौजज़ा 3.5 साल पहले का है सलीब पर चढ़ने से। यायर की बेटी को तकरीबन जो उनकी हिस्ट्री में, क्योंकि मसीह आम शख्सियत नहीं है, मसीह का एक एक दिन लिखा है यहूदियों के पास, एक एक दिन लिखा है रूमियों के पास। यीशु के पीछे पीछे बड़े मुकबर थे जो उसके जुलूस में होते थे, जो उसके शिगिर्दों के साथ रहते थे, जो उस भीड़ में होते थे, और वो हर रोज की डायरी रूमियों को देते थे। आज वो इस जगह पर गया, आज वो इस जगह पर गया। कई सिविलियन कपड़ों में थे, कई रूमी अपनी फौजी वर्दी में होते थे, कई सिपाही थे, कई किस तरह से थे, ताकि यीशु के बारे में जो बात, जो अफवाह, जो खबर नुमाया थी कि ये एक बागियों का टोला है, ये रिबेलियन है, ये मकाबियों की तरह यहूदियों को तैयार कर रहा है कि रूमी हुकूमत के खिलाफ हो जाए। ये बराबा के ग्रुप का शख्स है कि ये लोगों को तैयार कर रहा है कि हम किस वक्त रूमियों पर अटैक करें, किस वक्त कब्जा कर लें, किस वक्त रूमियों को मार भगाएं। तो इसलिए हर वक्त मुकबर इसके पीछे लगे रहते थे। यीशु कोई आम सी बात नहीं कि मनगढ़ंत कहानी बना ली, इसके पीछे यहूदियों की डेली डायरी थी, इसके पीछे रूमियों की डेली डायरी थी, इसके पीछे फकी फरीसी लगे हुए थे कि हम इसको जाने कि ये तालीम क्या देता है। इसके पास कहनों का ग्रुप था कि वो देखते थे कि ये किस तरह से बाइख्तियार है, निडर है, क्योंकि बब्बर है वो यहूदा का, वो खुदा का बर्रा है, लेकिन लोगों के दरमियान वो बब्बर है। लोग उसको, लोगों के दरमियान भी यीशु को बर्रा ही समझते हैं। लूका की इंजील पढ़ के देखें, वो कहता है जो मुझे बादशाह नहीं मानता उसको मेरे सामने लाकर कत्ल कर दो। यीशु की शख्सियत को स्टडी करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। ये मंगल का दिन रात को अदालतें खुल गई, गतसमनी में से उसको पकड़ा, उसको घसीटते और मारते हैं, और कभी उसको हेरोदिस के पास ले जाते हैं, कभी पिलातुस के पास लेके आ जाते हैं, कभी लोगों के सामने चले जाते हैं, कभी कहनों के पास लेके जाते हैं, घसीटते हैं, मारते हैं, जलील कर रहे हैं। उसको नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए, उसके कपड़े जो हैं उन पर कुरा डाला जा रहा है, उसको जलीलो ख्वार किया जा रहा है, और आखिरकार यहां तक पहुंच गई बात कि जो दाऊद ने कहा कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, तो गैर अकवाम को यहूदी कुत्ते कहते थे। इसीलिए मकाशवा की किताब में भी लिखा है कि कुत्ते खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये जानवर की बात नहीं, जो कुत्ता जानवर है, डॉग जो है, उसकी बात नहीं, ये इंसानों की बात है। गैर अक़वाम को सूर भी कहा जाता था, नपाक भी कहा जाता था, उनके साथ खाना पीना, यहां तक कि उनके साथ बिजनेस करना भी गुनाह समझा जाता था, क्योंकि वो नपाकी की हालत में है। मसीह ने उनके लिए भी
पकीजगी का दरवाजा खोल दिया, उनका नंग भी ढांक दिया। उसका एक चोगा जो है वो रूमियों के नाम पर, एक सिपाही के नाम पर निकला, जिसका मतलब है अब वो दावत है कि गैर अक़वाम भी मसीह के साए तले आ सकते हैं, उसके लिबास के नीचे आ सकते हैं। मसीह तुम्हें ढांक सकता है। जैसे बागे अदन में एक बर्रे की खाल से आदम और हवा को लुंगियां दी गई, कपड़े दिए गए, इसी तरह आज वही बर्रा रूमियों के लिए भी कपड़े मुहैया कर रहा है, उनका भी नंग ढांक रहा है। मसीह की जात पर जो शिया हजरात के जाकिर हैं, उनकी तरह स्टडी करो, जो अपने रहनुमाओं को, अपने खलीफा को, अपने नबी को, अपने रहनुमा को किस तरह से फजीलत देते हैं। वहां गीत नहीं गाए जाते कि 3-3 घंटे ढोलकियां बजाते रहो, पीटते रहो। वहां पर सिर्फ जिक्र है, जिक्र किया जाता है। आप मसीह की जिंदगी के बारे में जितना ज्यादा गहरे तौर पर जानेंगे कि वो किस शख्सियत का मालिक था। उसके सामने तो आग आग नहीं, पानी पानी नहीं, हवा हवा नहीं, मुर्दे मुर्दे नहीं, अंधे अंधे नहीं, बीमार बीमार नहीं, खुराक की कमती नहीं। उसको इस बात की फिक्र नहीं कि कहां से खाना लेके आना है। वो तो हाथ लगाए तो खाना ही खाना हो जाता है, पानी को हाथ लगाए तो वो मशरूब बन जाते हैं। किसी के आंखों में वो आई बॉल नहीं, डेले नहीं, तो वो मिट्टी रखता है तो आई बॉल बना देता है, उसके डेले बना देता है। तो इसलिए आज के दिन का जो अमल है, मंगल का दिन है, और ये मसीह की वो खासो खास अदात को दिखाता है कि जब वो यहूदी आए, रूमी आए और आके तो यीशु को कहते हैं कि बस बलवा हो गया बागे गतसमनी में, मैं वहां पर गया हूं, मैंने वो जगह देखी है, अपनी आंखों से देखी है, उन दरख्तों को छुआ है, उनको बोसा दिया है कि ये वो दरख्त हैं जिन दरख्तों के नीचे मेरे यीशु के शागिर्द और मेरा यीशु भी एक रात गुजार चुका है। और आज तक 2000 साल गुजर चुके, आज तक उनके ऊपर ताजा अच्छे फ्रेश पत्ते निकलते हैं और जैतून लगते हैं आज तक। तो जो उसको मानने वाले हैं, उनकी जिंदगियों में क्यों वो फल नजर नहीं आते, क्यों वो ताजगी नहीं आती? और जो उसको प्रीच करने वाले हैं, क्यों इधर उधर की बोंगियां मारते रहते हैं? जब कहा गया, वो यूहन्ना की बात को पेश करते हैं दूसरे के वो घर में नहीं था। भाई वो घर में नहीं था, यीशु ने सीधा अपनी मां मरियम को कहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया। आप उन वक्तों म्यादों को पढ़ें कि किस वक्त की वो बात हो रही है। और शागिर्दों को यीशु ने कहा, उठो चलें, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वक्त पूरा हो गया। यीशु वक्त पर करता है सब कुछ। यीशु ने ये दुनिया बनाई, कुर्सियों के खत में लिखा पहले बाब में, कोई चीज भी उसके बगैर नहीं बनी। पैदाइश की किताब पहला बाब पढ़े, वहां पर उसने हर बात का पीरियड मुकर्रर किया है, टाइम मुकर्रर किया है। मंगल के दिन उसने कहा, उठो चलें, अब वक्त आ गया है। और जब वो रूमी यहूदी आए तो उनको कहा, मैं तो हर रोज तुम्हारे साथ था। कहनों को भी कहा, मैं तो हर रोज तुम्हारे साथ था। तुम छड़ियां लेके आ गए, तलवारें लेके आ गए, मैं कोई चोर डाकू थोड़ा हूं। तो उन्होंने कहा कि हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। जब यीशु ने कहा मैं हूं, तो गिर पड़े। जब तक उसने अपने आप को अपनी पेशी नहीं दी, अपने आप को उनके सामने पेश नहीं किया, किसी की जुर्रत नहीं थी कि यीशु के कपड़ों को भी हाथ लगा दे। किसी की जुर्रत नहीं थी कि यीशु के सामने खड़ा हो। इसलिए यीशु नहीं छुपता था, ना यीशु छुपा है। तुम्हारी कम अकली है कि यीशु छुपा हुआ था। वो छुपा नहीं था, वो अपने वक्त का इंतजार कर रहा था।
اے باپ جیسے تیری مرضی ہے. جو وہ باپ